Hi everyone, so today we are going to discuss study plan for 2022 and 23 boards examination. So in this study plan we will be discussing how to make a study plan. This is not going to be a video in which I'll be telling you that which one you need to do something or where to do something or from which source you have to do something. I'll be telling you how to do it, which is the main mantra. That if you know that where to do it, you can easily do it. So first, we are not going to waste our time because if half yearly examination, most of you have understood that what's your level, and most of the students who aspired for 95% plus, they get about 60 to 80% marks, which is not their desired marks, right? Which is not their desired marks. Their desired marks are 95% plus. So there are various factors. Some videos on YouTube might be saying you that half yearly doesn't determine how your board goes, but I say is that if you half yearly determines how your, because this is one of the most important part, because here is when the students become serious, because this is the first examination in which you get exposure to what you're going to get in your actual examination, actual examination. So I think you should take your marks really seriously, although they are only for assessment, but they also play an important role in determining. If you say that like ये तो स्कूल वालों के नंबर थे, हमने जानकर कम लगा दिए कि सीरियस हो गया बच्चा, you are totally wrong here. You are totally wrong here. So first thing you have to do is analyze your half yearly question papers. So here, what is the main idea behind it? You will understand. For example, you have 20 questions. You have 20 questions. So from the 20 questions, 8 questions are from, let's take your chapter light. 2 questions are from control and coordination. And about 10 questions are from life processes. Just for example. Now see, you know that out of 8 of these questions, you know 7 questions really well. You know that what is their upside, what's their downside, you know everything, each and every part. For example, you get question like what is an optic ray and what is the theory, and all this question no. But there is still one question which you don't know. That might be a numerical, that might be identification of lenses, that might be about refractive index. So you need to work on that topic. Now, in control and coordination, they ask you about hormones, where they are secreted, from which gland they are secreted, and what is the name of the hormone which is responsible for that. So you understand here that you are unable to remember them. You are not able to remember them, and hardly in this you could score half marks because you didn't have practice. And some of students might be cheating in this half yearly examination, but आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए प्लीज़ यहाँ पे भी चीटिंग मत करें. टेक इट एज अ सीरियस इन्वायरमेंट, और जितने आपके डिज़ायर्ड मार्क्स हैं, जितने आप खुद ला सकते हैं वो आप देखिए, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ये आपके मार्कशीट में मार्क्स नहीं आएंगे, बट दे हैव ए ह्यूज इम्प्रेशन
कि आप अभी अपना जो है रिविजन वगैरह शुरू करोगे, अभी आप सीरियस हो जाओगे, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब लाइफ प्रोसेसेस में आपको 10 के 10 क्वेश्चन आते थे, तो अब क्या है, इनमें से सबसे सीरियस क्या करना है तुम्हें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है। फिर आपको क्या, लाइट पे ध्यान देना है। अब आपको लाइफ प्रोसेसेस आता है, लाइफ प्रोसेसेस की आप एक बार रिविजन करोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, एक बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से। पर इनको आपको दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। अब एनालाइज हो गए पेपर। अब तुम्हें पता लग गया कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से सबसे वीक कौन से हैं। अब मैं बात करूँ मैथ की। अब मैथ में 2 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। पहला तो आपको कंसेप्ट नहीं पता होता, दूसरा आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। तो जो आपका कंसेप्ट है इसमें आप क्या कर सकते हो? कंसेप्ट के लिए आप क्या करो, एनसीईआरटी के ना जब चैप्टर शुरू होता है एनसीईआरटी में कुछ पेजेस में थ्योरी दी होती है, मतलब वो आप उसमें एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, वो मतलब एग्जाम्पल टाइप नहीं, वो होती है आपकी बहुत ही न्यूसेंस की एग्जाम्पल्स, लाइक इफ़ शी हैज़ वन एप्पल शी श्योर यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, वो छोड़ के आप मेन पढ़ लो। जैसे पहले चैप्टर में आप पढ़ सकते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो आपको एनसीईआरटी के पहले जो कॉन्टेक्स्ट है आपका उसमें क्या है आपको वो रीड कर लेना। फिर उसके बाद अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आपको ये तो भैया प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे 1 घंटा मैथ को तो आपको ये आ सकता है, मतलब तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली हो ही जाएंगी। अगर आप देखें कि आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है कि इक्वल टू के साइन के इधर जाके साइन चेंज होते हैं, कई बार यहाँ पे प्लस में जाना होता है हम डिवाइड में ले जाते, तो इस माइनर सी गलतियों का आपको ध्यान रखना है। अब आपका दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है, दूसरा स्टेप है एनालाइज कर लिया। अब अपने टाइम स्लॉट्स देखो, टाइम स्लॉट्स वेयर यू आर फ्री। तो यही रीज़न था कि मैं बनाया आपके पास स्टडी प्लान नहीं लेके आया, क्योंकि सभी का जो टाइम स्लॉट्स हैं उनको अलग अलग मिलेंगे। कईयों को सिर्फ 3 घंटा सेल्फ स्टडी का मिलेगा, कईयों को 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी भी मिल सकते हैं, जैसे 3 घंटे जो ट्यूशन पे भी लगे हुए हैं, और जो ये नॉन ट्यूशन स्टूडेंट्स हैं इनको 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है, दिस वेरीज। ओके, दैट्स वाई दिस द रीज़न। अब आपको ये करना कैसे है, तो पहले आपको देखना है आप उठते कितने बजे हो। यू वे फॉर एग्जांपल यू वेक अप एट 5 AM, क्लियर। अब आप देखो ना, यहाँ 5 AM से अगर आपको मैं बात करूँ 6:30 तक आप यहाँ पे फ्री हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, फिर स्कूल से आते हो। फॉर एग्जांपल आप 3:30 पे, दिस आई एम शेयरिंग माई रूटीन। तो अब देखो 3:30 पे आप घर आते हो तो आप क्या करो, लंच करोगे 4 o'clock तक, तो टिल 4 o'clock तो आप लंच करोगे, तो ये तो फ्री नहीं है। फिर उसके बाद 4 o'clock से आप देखो 4 o'clock से अब कईयों की ट्यूशन्स होंगी, अब वो ट्यूशन स्किप करो आप, मतलब स्किप मतलब कि ये टाइम स्लॉट को आप फ्री लिखने के लिए स्किप कर दो, ऐसे नहीं ट्यूशन जानी छोड़ दो। अब ट्यूशन से क्या है, अब 4 से 5 है आपका, ये जो नहीं जाते ट्यूशन उनके लिए ये फ्री है। तो आपको ऐसे हम आपका सारा रूटीन एनालाइज करना है, एनालिसिस। अब इसमें आपने एक दो चीज़ों का ध्यान देना है। तो पहला है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। कई करते हैं कि जो ये ज़्यादातर होता है जिनको टाइम कम मिलता है सेल्फ स्टडी का, वो क्या करते हैं कि अगर वो इतना पढ़े तो मैं भी इतना पढूं, बट आप ऑलरेडी ट्यूशन्स वगैरह पे पढ़ पे आए होते, इसीलिए अगर वो क्या करते हैं, वो आपको सुबह तो लगा लेते हैं मैंने 5 बजे उठना है, बट यहाँ पे रात को 1 बजे तक पढ़ रहे हैं वो, तो ये कोई सेंस नहीं बनती इसकी, ये सेंसलेस है। ये आप 1 दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 1 हफ्ता कर लोगे, महीना कर लोगे, बट दिस इज़ नॉट दैट प्रैक्टिकल। ये तो इतना प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप 4 घंटे रोज़ नहीं
सो सकते हो। यू नीड टू हैव अ हेल्दी, तो इसमें ध्यान रखना कि आप एटलीस्ट 6.5 आवर की स्लीप रखो, 6.5 आवर की स्लीप रखो। 7 to 8 आवर इनफ। 9 अपने 8 आवर से एक्सीड नहीं करना। अब बहुत सो लिए, अब नहीं सोना। अब 8 आवर से एक्सीड नहीं करना और 6.5 आवर से नीचे नहीं जाना। क्लियर। अब आपका तीसरा स्टेप आता है। अब आपको पता लग गया फ्री कितना, और उसके हिसाब से मेक गोल्स। क्या करो, अपने चैप्टर काउंट करो, मैंने किए हैं 36 चैप्टर्स तुम्हारे SST साइंस दोनों के कंबाइन। ये आपके मेन सब्जेक्ट है। इनके साथ मैथ पैरेलली चलेगा, मैथ पैरेलली चलेगा, और जो आपकी इंग्लिश है और पंजाबी है वो अल्टरनेट चलेंगी। मतलब वीक में एक दिन इंग्लिश और एक दिन मतलब पंजाबी किसी का हो सकता है, किसी की हिंदी हो सकती है, कोई भी आपका जो और लैंग्वेज सब्जेक्ट है, IT हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, एनीथिंग, राइट। अब आपको पता लग गया ये वाला कि आपने अब क्या देखा कि आप क्या कर सकते हो, आप गोल्स बना लो। गोल्स बन गए। अब आपको गोल्स कैसे बनाने हैं, आप ना ऐसे करो, अब 36 चैप्टर्स हैं, 36 डेज़ का प्लान बना लो। और ये प्लान को एफिशिएंटली बनाने में ना तुम्हें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। मैंने बनाया था कल, मुझे 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे मुझे लग गए। क्यों लगे ये? पहले आपने क्या लिखना है, पहले आपने क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि आप SST या फिर साइंस में से एक चैप्टर कौन सा करोगे आज, जिसकी तुम NCERT रीडिंग करोगे। NCERT रीडिंग करोगे तो उसके बाद तुमने क्या करना है, तुम्हें जिस दिन तुम्हें लगे कि एक स्मॉल चैप्टर है तो उस दिन क्या करो, उसके साथ ऐड कर लो इंग्लिश और कोई भी अदर सब्जेक्ट जो कि सिंपल सा होता है, जो कि सिंपल सा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तीसरा स्टेप होगा रेफरेंस बुक। आई नो मतलब NCERT इनफ है, बट कईयों का मन नहीं भरता, किसी का भी नहीं भरता, क्योंकि सारी क्लास आपकी रेफरेंस बुक ले ही बैठी होती है। तो आपको लगता है कि अगर इनको इन्फॉर्मेशन है तो हमारा भी मन करता है। जस्ट ऑब्वियसली अगर आप पढ़ते भी कोई बुरी बात नहीं है, आपकी कंसेप्ट और क्लियर होती है। तो आप रेफरेंस बुक के लिए रोज़ अगर हाफ आवर भी दोगे तो वो इनफ है। ये आप साइंस और SST के लिए कह रही हैं, साइंस और SST के लिए। फिर उसके बाद आपने चौथा क्या करना है, आपने मैथमेटिक्स करना है, मैथ्स। अब मैथ्स का भी 2 है, एक तो है आपकी NCERT। अगर मैं NCERT की बात करूँ, इसमें अबाउट 318 पेजेस हैं। और फिर मैं बात करता हूँ रेफरेंस बुक की, तो RD शर्मा की मैं बात करूँ तो इसमें 744 पेजेस हैं। तो अगर 318 को मैं एनालाइज करूँ तो आप क्या देखोगे। अब इसमें आपको मैंने क्या लिखा, मैंने प्लान में क्या लिखा था, पेज वाइज लिखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल डे 1, मैं आपको लिख के दिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल डे 1, पहले आप यहाँ पे लिखो शॉर्ट फॉर्म में NR NCERT रीडिंग। तो NCERT रीडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख दी हेरिडिटी की। फिर मैंने VL लिखा, वीडियो लेक्चर। कोई अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं वीडियो लेक्चर कौन सा दी, तो यहाँ पे मैंने आपका चैनल स्पेसिफाई किया, यहाँ पे चैनल स्पेसिफाई किया और कौन से चैप्टर की देखनी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे हेरिडिटी। फिर मैंने बॉक्स बना लिया। फिर उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ कि अब मैंने कौन से चैप्टर को अपलोड करना है।
फिर उसके बाद आपके पास आता है एनसीईआरटी, फिर उसके बाद आता है आपकी आर डी शर्मा। आर डी शर्मा में मैंने फॉर एग्जांपल लिखा पेज नंबर 3 अब देखो तुम कितना, पहले में शुरुआत में बहुत पेजेस हो जाते हैं, लाइक 6 पेजेस, तो पेज नंबर 9 तक मैंने आज करना है जितने क्वेश्चन है जितनी, क्योंकि पहले तो एग्जांपल्स होते हैं वो कम होती हैं, जहाँ पे एक्सरसाइज आ गई आप एक्सरसाइज को 1 डे दे सकते हो। तो उसके बाद आप लिखो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, तो उसका लिख लो पेज नंबर 1 to 12 और कुछ भी, क्योंकि इसमें पहले शुरुआत में एग्जाम्पल होते हैं तो आप ज़्यादा पेज कर पाओ। अब ये आपको हर एक वीकडे के लिए करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपको ये रिपीट करना है जो मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं संडे की। संडे है और जो आपके पास सैटरडे नाइट है, ये आपके लिए क्या है, ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए गोल्ड है। क्यों है? संडे को मैं क्या कहता हूँ, रिवीजन करो, आप रिवाइज करो और मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस ये इनफ है। आपने वीक में जितने भी चैप्टर किए हैं उनके जो भी नोट्स बनाए हैं उन सबको रिवाइज करो। अब ऐसे नहीं है कि आप संडे को सबकी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नहीं, जो भी आपने नोट्स पढ़ाए हैं, जो भी आपने की पॉइंट्स लिखे हैं, जो भी आपने रिवाइज करने के लिए अपना मेथड यूज़ करना है, जो आप यूजुअली करते हो वो आप करो, या फिर एनसीईआरटी में जो आपने हाईलाइट किया वो रीड कर लो। क्लियर? और अब सैटरडे नाइट को कह रहा, अगर आपका कोई बैकलॉग है, अगर आपका कोई चैप्टर पूरा नहीं हुआ, अगर आपका कोई टेस्ट है उसके लिए रिवाइज कर लो, अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए स्टडी कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, तुम सुबह के 5 AM तक बैठे रह सकते हो। अगर तुम जाओ, अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ तो चुप करो और अपना जाकर सो जाओ। क्लियर? अब उसके साथ सैटरडे नाइट की डिस्कस होगी, इसके साथ क्या आपका, मुझे लगता है प्लान तो बन गया होगा, बट मेन चीज़ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। अब मैंने पहले ही भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि आप आर डी शर्मा एक दिन में, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आर डी शर्मा एक मंथ में करूँगा तो वो नहीं हो सकता। अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे बैलेंस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो ये ना हो नहीं सकता एक महीने में। तो मैंने जब डिवाइड किया मुझे पता लगा कि मुझे इसमें क्या लगेंगे, 90 डेज़ लगेंगे। 90 डेज़ किस में, मतलब 3 मंथ्स आर शर्मा कंप्लीट करने में। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जैन है, मतलब मेरा इन तीनों में तो क्या हो जाएगा, आर खत्म हो, कि मैं यहाँ पे जनवरी पे आपका PYQs और सैम्पल पेपर कर पाएँ आप। तो आपने ऐसे करना है। तो आपके पास अगर आप अब आपने मैथ अगर बेसिक लिया हुआ है तो आपके लिए RS अग्रवाल अच्छी है, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया हुआ है तो आपके लिए RD शर्मा अच्छी है। तो मैंने ये भी बता दी, इसमें क्या है, टीचर्स 13-13 मिनटों की वीडियो डाल रहे हैं जो कि आपका सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। तो आपके, मैंने आपको सिर्फ लाइक मैक्सिमम 10 सेकंड्स में आपको बता दिया ये। क्लियर? अगर बेसिक है RS कर लो, अगर स्टैंडर्ड है तो RD कर लो, सिंपल। बट आपकी जो NCERT है वो टिप्स पे होनी चाहिए। क्लियर? इसके साथ आज का हमारा स्टडी प्लान कंप्लीट होता है। स्टडी प्लान, अब स्टडी प्लान आपका बन गया कि आपको कैसे करना है, आप इम्प्लीमेंट करो। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको, आप फाइंड करो, आप कोई टीचर को फाइंड करो, आपके कोई फ्रेंड को फाइंड करो, या फिर आपके कोई सिबलिंग को फाइंड करो। इनको क्यों करना है भैया, इनमें से एक को आपको क्या हर रोज़ क्या देनी है, रिपोर्ट देनी है कि मैंने जो आपका
आपने क्या करना है, जो आपकी शीट है, ऐसे शीट है आपकी, यहाँ पे आपके गोल्स लिखे हुए हैं, तो इसकी क्या करो, पिक करो और अपने जो भी मेंटर आपने बनाया, आपका सिबलिंग, आपका फ्रेंड, आपका टीचर है, उसको करो सेंड। और फिर क्या करो, नाइट को क्या करो, जो ये बॉक्सेस हैं इनमें लगी हूँ टिक। अगर तुमने सच्ची में किया तो टिक लगा के भेजना, अगर नहीं किया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आज के लिए 4 टॉपिक थे, अगर मैंने 4 ही कर लिए तो चारों में टिक्स लगाकर उनको सेंड कर देना। अगर नहीं, अगर अब मेरे पास अगले दिन 4 गोल हैं और मुझे लगा एडी शर्मा के मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा लिख लिए, मेरे से नहीं हो पा रहे, तो आप ऐसे करना। क्लियर। आप यहाँ पे क्या लिख देना, हाफ लिख देना। अगर या फिर आप क्या, क्रॉस कभी भी मत लगाना, क्रॉस कभी भी मत लगाना, इसको खाली छोड़ देना। फिर आपने क्या करना है, संडे को लाना है, या फिर आपने क्या करना है, सैटरडे नाइट को ये क्या करना है, ये करना है आपने कंप्लीट। और एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउ हर एक चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियोस जल्दी आने वाली है, क्योंकि मैंने भी बना लिया अपना स्टडी प्लान और आपको भी मैंने बता दिया आपने कैसे बनाना है। और स्टडी प्लान में जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग का सेक्शन है उसमें मैंने सारे चैप्टर स्पेसिफाई कर लिए हैं और विद इन 36 डेज़ आपकी सारी साइंस और एसएसटी कंप्लीट करवा दी जाएगी। और मैथ फिर जब मेरी एडिशन में ख़त्म होगी तो मैं आपको एग्जाम्पलर PYQs करवा दूँगा। एंड लास्टली आपको अब करवाने वाले हैं हम सैम्पल पेपर्स साइंस से शुरू करेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर एसएसटी करेंगे और फिर इंग्लिश के साथ आपका एंड करेंगे। पंजाबी का करेंगे एक सैम्पल पेपर। और मैं अभी बता दूं, मैथ का पहले हम स्टैंडर्ड करेंगे, फिर बेसिक। ठीक है, किसी ने भी स्टैंडर्ड वाली वीडियो के नीचे बेसिक की स्पैम नहीं करना। क्लियर। तो इसके साथ थैंक यू। और अगर आपने अपना स्टडी प्लान बनाया है इस वीडियो को देखकर, तो आप क्या करो, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे रोल, ये जो यूट्यूब पे, इस पे आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, इसके साथ आपको मैंने बता दिया जो भी आपको स्टडी प्लान के लिए चाहिए था। और बहुत ही मैंने 23 मिनट्स में आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आप अपने बहुत ही अच्छा सा स्टडी प्लान बना सकते हो। और उसके ऊपर लिख लेना प्लेज, कि मैं शपथ लेता हूँ कि ये तो पूरा कर ही लूँ। तो इसके साथ क्या करते हैं, आज हम करते हैं आपका ये सेशन एंड, जिसमें कि आपने जाना कि आपने स्टडी प्लान कैसे बनाना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि बता हर कोई देता कि कैसे बनाना है, ये करना है, वो करना है, पर इम्प्लीमेंट मैंने आपको बहुत ही सबसे अच्छा मेथड बताया। क्योंकि अगर आप नहीं पूरा करोगे और उनको रिपोर्ट नहीं भेजोगे, उनका तभी रात को मैसेज आए, आज क्या हो गया तुमको, तुम पढ़ने क्यों नहीं, तुमको फिर अंदर से गुस्सा आएगा कि मैंने आज क्यों नहीं किया, तो आप फिर उसको करोगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको पता लग गया होगा कि अब आपको क्या करना है। हाफ ईयरली से सीखो और बोर्ड्स के लिए हो जाओ तैयार। एंड प्री बोर्ड्स में आपको अपने टीचर्स को दिखा देना जो भी आपको कहते हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। एंड आप अपना गोल क्या करो, 100% लेके चलो। कोई भी 95% नहीं लेके चलेगा, कोई भी आपका 90% नहीं, 100% लेके चलो। और 100% अगर रिज़ल्ट चाहिए तो क्या करो, 100% एफर्ट्स भी करो। और अगर ये कर लिया तुमने, तुम्हारी 100% आने से कोई नहीं रुक सकता। यू आर द नेक्स्ट CBSE टॉपर। क्लियर। इसके साथ तुम लोगों का सारा स्टडी प्लान हो गया डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करके जाना।